On behalf of Galgodia's College of Engineering and Technology, I invite to Dr. Pankaj Pathania, and today topic is design thinking innovation roadmap. This lecture is a part of student induction program, and Dr. Pankaj Pathania is going to deliver a lecture on the topic of design thinking and innovation roadmap. And now I invite to Dr. Pankaj to deliver a lecture for the same. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Bipin, sir. Thank you, HOD, sir, to give me the opportunity to present a topic that is very important in the point of view of students now. So my session is basically on design thinking and innovation, a roadmap to startup and entrepreneurship. So myself, Dr. Pankaj Pathania, startup coordinator, Galgodia Center for Experiential Learning, Innovation and Incubation. And my outline of my session is introduction of National Education Policy, that is called NEP, and the National Innovation and Startup Policy 2019. And another is role of design thinking and innovation, which leads to the startup and entrepreneurship. So basically it is very important. Now first of all we will discuss about the national India's education system by 2040 मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, ये नई पॉलिसी है, ये पॉलिसी नहीं है, इट इज अ पॉलिसी बट इट इज अ मिशन. ये मिशन है स्टूडेंट्स. द लास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज released in 86 and modified in 92. Since then, major changes have been observed in the world and in the country, and the education policy needed to be modified as per the current scenario. So it is approved by the Union Cabinet of India on 29 July 2020. So former President APJ Abdul Kalam emphasized on the need of a value-based education system that instills principle of rightness at a young age to form the cultural citizen to transform India into a prosperous, peaceful, happy and developed nation. So जैसे हमारा सिनेरियो चेंज हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स हो रही है, तो हमें अब एक नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है. रिक्वायरमेंट अलग है सोसाइटी की, तो हमें एक अलग एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है. और इसका मेन जो क्रक्स है इसका वो है कि हमें वोकेशनल स्टडी को साथ लेके चलना है. जो प्रेजेंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम वोकेशनल जो स्टडी है स्किल्स को इंप्रूव करना. नाउ vision of National Education Policy 2020, an education system that contributes to an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. Develop a deep sense of respect towards the fundamental rights, duties and constitutional values, bonding with one's country and a conscious awareness of one's role and responsibility in the changing world. And the other is visit instill skills, values, disposition and that support responsible commitment to human rights, sustainable development and the living and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen. So it is a main motto to produce a truly global citizen. National innovation is a guide framework to enable the institutes to actively engage students and the faculty in innovation and entrepreneurship related
रिलेटेड एक्टिविटीज। अब जो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है कि हर स्टूडेंट के पास आइडियाज होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके एक अपना इनोवेशन स्टार्ट करके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, अपने आप को एक वेल एस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर बनाए। ये मेन एम है इस नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी। सो व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन मींस अ न्यूनेस एंड एडिंग वैल्यू, कुछ नया डेवलप करना। इनोवेशन का मतलब इन्वेंशन और इनोवेशन में बच्चों अंतर है। इनोवेशन इज बेसिकली कि द करंट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में हम चेंज करना है, जैसे 2G 3G 4G 5G, इसमें हम क्या कर रहे हैं? फंक्शनल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, सिंबॉलिक वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। और जो इनोवेशन है दैट इज बेसिकली दैट इज टू टाइप, रेडिकल इनोवेशन एंड incremental innovation. Invention is something new. Understand? So innovation means we are adding our skills to develop the product which is suitable for the current need of people. So radical innovation means suddenly innovation, हम क्या करेंगे? नया कोई innovation करे आइडिया। और इंक्रीमेंटल का मतलब है हम उसमें कुछ ऐड करते हैं, 2G 3G 4G एंड 5G। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज आइडेंटिफिकेशन, एवेल्युएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। जितना भी आपका आइडिया है, जितना भी आपके बच्चे जो इनोवेशंस हैं, उनको स्टार्टअप के थ्रू वी कैन गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। सो स्टार्टअप मीन्स द रिस्क इज लेस एज कंपेयर टू द एंटरप्रेन्योरशिप। आगे हम डिस्कस करेंगे इस बार। तो व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग? सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है दैट इज डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग का मतलब जब भी हम कुछ सोचते हैं और उसका कंट्रोल हम में ही है, हम इंडिविजुअल्स वी आर कंट्रोल। तो डिजाइन कैसे करना है? जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो उसने पहले एक डिजाइन बनाया और उसको अपने, और उसका कंट्रोल कौन कर रहा था? शाहजहां उसको कंट्रोल कर। अंडरस्टैंड? सो डिजाइन थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आज का जो मैक्सिमम जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो डिजाइन थिंकिंग को प्रायोरिटी दे रही है। अंडरस्टैंड? सो डिजाइन थिंकिंग इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली ये कस्टमर सेंट्रेड अप्रोच है कि कस्टमर की नीड क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या वो चाहते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट उन्हें चाहिए। तो डिजाइन थिंकिंग कस्टमर ओरिएंटेड है। सो डिजाइन थिंकिंग इज मेथड ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रायोरिटाइजिंग द कस्टमर्स नीड अबव ऑल एल्स। इट ड्रॉ अपॉन द, कैसे होगा? लॉजिक, इमेजिनेशन, इंट्यूशंस एंड द सिस्टमेटिक रीजनिंग। These are the main part for the design thinking, to explore possibility of what could be and to create desired outcomes that benefit the end user, having empathy as a key builder। हम अभी प्रोसेस पढ़ेंगे और ये नॉन लीनियर प्रोसेस है। नाउ ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन इनोवेशन। ह्यूमन सेंटर्ड में देयर इज अ 3 पार्ट: वायबिलिटी, डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी। डिजायरेबिलिटी का मतलब है कि क्या डिजायर है कस्टमर्स को, किस तरह का प्रोडक्ट उनको चाहिए। उसका वायबिलिटी का मतलब है क्या वो वर्क भी कर सकता है, आपका जो आपने डिजाइन बनाया है, थिंक किया है, क्या वो वर्क कर सकता है, या कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है, क्या आपकी कैपेबिलिटी है उस तरीके के काम करने की। और सेकंड है डिजायरेबिलिटी की, लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है उस प्रोडक्ट को लेके। एंड द थर्ड इज फिजिबिलिटी, क्या वो फिजिबल भी है, मींस एबिलिटी टू बी कन्वीनियंटली डन। क्या हम उसको फिजिबली, कई बार ऐसे होते हैं, कई ऐसे आइडियाज होते हैं जो कि फिजिबल ही नहीं है, मतलब जिनको मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सोच जाए तो वो फिजिबल नहीं है। तो ये भी बहुत ध्यान रखने की चीज है जब हम एक स्टार्टअप अपना कोई प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में थिंक कर रहे हैं। तो डिजाइनिंग थिंकिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ इज डिजाइन चेंजिंग द वर्ल्ड? तो $10 trillion वर्थ
10% of Fortune 500 companies have a design on their priority. IBM invested $100 millions in building a massive design organization and hired thousand designers. So Infosys has reskilled over 1 lakh employees with the design thinking. So these MNC companies are hire the people who can do their work according to the design thinking. Now, what is design? Decide upon the look and the functioning by making a detailed drawing of it. Design से आप अवेयर हैं बच्चों, आपको लुक एंड फंक्शन, इस कोई बिल्डिंग बनानी तो उसका एक डिजाइन होगा, उसका क्या क्या फंक्शन, आप एक मोबाइल फोन बना रहे हो तो उसमें क्या क्या लुक उसका क्या होना चाहिए, फंक्शंस क्या क्या ऐड करने चाहिए, ये सारा हम डिजाइन करेंगे. एंड अ प्लान और ड्राइंग प्रोड्यूस टू शो द लुक एंड फंक्शन और वर्किंग ऑफ अ बिल्डिंग, गारमेंट और अदर ऑब्जेक्ट बिफोर इट बिल्ड. सपोज करो एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन से बात करें. यहां देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्म, फंक्शन एंड द ह्यूमन. फॉर्म मींस कि मैं यहां पे मेरे हाथ में मोबाइल है, इसका डिजाइन में कि किस तरह का डिजाइन होगा, क्या वो मेरे ये माउस है तो इसका शेप क्या होगी, क्या ये इजीली हम इस फोन को हैंडल कर पाएंगे, क्या यदि हम टैब लेंगे तो क्या टैब से हम कॉलिंग वाली ऑप्शन कर पाएंगे या कॉलिंग के लिए यूज कर पाएंगे, कंफर्टेबल होगा, फ्रेंडली यूजर मतलब फ्रेंडली हम उसको यूज कर पाए. सेकंड इज फंक्शन. फंक्शन हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग हम कर सकते हैं. जैसे सपोज करो आईफोन ने सिक्योरिटी के लिए हमने काफी सारी चीजें जो हम ऐड कर दी, तो फंक्शन ऐड करना. ह्यूमन मीन इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द फॉर्म, कि मेरे पास ये फोन है, उसकी शेप है और मेरे साथ इंटरेक्ट हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फोन को यूज करके. ठीक है, तो वो है कम्युनिकेशन डिजाइन. व्हाट इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है कि जब फॉर्म एंड फंक्शन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, शेप और उसके अंदर जो फंक्शन, इंडस्ट्रियल डिजाइन हम बात करते हैं. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिजाइन थिंकिंग. जब फंक्शन हो गया तो जब फंक्शन ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो हम इससे डिजाइन थिंकिंग कि वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है. अंडरस्टैंड? सो ये जो चीज है वो क्या है, डिजाइन थिंकिंग है. फोन है मेरी, जो मैं चाह रहा हूं कि मुझे क्या क्या इसमें फंक्शन चाहिए वो मेरे को मिल रहे हैं. दैट इज बेसिक अल्टीमेट गोल. नाउ व्हाट इज प्रोसेस? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देयर इज 5 main process. That is empathy. That is empathy means सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन हमें करना है तो पहले हम क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल करेंगे, एम्पैथाइज करेंगे. मींस लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि उनकी नीड क्या है, लोगों के साथ हम बात करेंगे कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए फोन के अंदर, यदि कोई फीचर्स नहीं है तो क्या क्या चाहिए, तो हमें पहले एम्फेसाइज करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा. टू कंडक्ट रिसर्च टू गेट द पर्सनल ग्राफ्स ऑफ एंड यूजर नीड्स. सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिफाइन द प्रॉब्लम. अब कोई प्रॉब्लम आई, मैं अभी केस स्टडी के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. 5 पार्ट्स हम अभी कर ले डिस्कस. The way of structuring or presenting a problem or an issue according the need and challenging of customer. Need and challenge of customer के according हम क्या करेंगे, problems को define करेंगे. पहले क्या करेंगे, हम empathy करेंगे, मतलब लोगों के साथ discuss करेंगे, फिर problem search करेंगे, define करेंगे, फिर next is आइडिएशन, आइडिया. यदि आपको प्रॉब्लम अपने सेट कर ली, हेलो, यस, शुड आई कंटिन्यू? यस, कंटिन्यू. सो
आइडिएशन मीन्स कि जब हमें ये पता चल गया कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और हमने उसको डिफाइन कर लिया, तो अगला काम हमारा क्या होगा, हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे और उसमें आइडियाज जनरेट कि हमारे पास आइडियाज, और आइडियाज के लिए मीन्स इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उसके लिए मिनिमम मैक्सिमम लोग हमें चाहिए जो कि अलग अलग सोच के हों, हेटेरोजीनियस। इसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बोलते हैं। डिफरेंट काइंड के पीपल होंगे तो आइडियाज बहुत ज्यादा होंगे और उसका सोल्यूशन भी अच्छा मिलेगा। तो दीज आर द प्रोसेस वेयर वी जनरेट आइडियाज एंड द सोल्यूशन थ्रू सेशन। फोर्थ वन, जब आपने आप प्रॉब्लम भी ढूंढ ली, डिस्कस भी कर लिया और आपका एडिटेशन भी कर लिया, आइडिया भी आ गया, और ये नॉन लीनियर प्रोसेस है। यदि आपका फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉब्लम डिफाइन नहीं हुई है तो आप फिर से सर्वे करोगे मार्केट में जाके, ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम को, तो ये इरिटेटिव प्रोसेस है। इसमें हम पीछे जाएंगे, हर स्टेप को वेरीफाई करते हुए आगे जाएंगे। एंड देन इज अ प्रोटोटाइप मींस डमी प्रोडक्ट। इट इज अ प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ प्रोडक्ट थ्रू स्केचेस, मॉडल्स, किस लिए कि उसका लुक कैसे होगा, सेफ होगा, और ये कस्टमर्स फ्यू सिलेक्टेड कस्टमर्स को से हम फीडबैक लेंगे, एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। उस पे आपको ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना है और ना ही ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है। आप एक मॉडल होगा, अंडरस्टैंड, तो एक प्रोटोटाइप आप बनाओगे पहले फाइनल प्रोडक्ट से पहले, ठीक है। और यदि आप प्रोटोटाइप नहीं बना पा रहे हो तो फिर से आपको डिफाइन प्रॉब्लम करनी पड़ेगी और आइडियाज लेके आने पड़ेंगे, देन आप प्रोटोटाइप बना लोगे। जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि आप प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग है, उनकी प्रॉब्लम को ध्यान रखा गया है और आइडियाज को बिल्कुल सही आइडियाज है, उसका सोल्यूशन ठीक है, तो प्रोटोटाइप आप बना सकते हो। उसके बाद आपका टेस्टिंग लेवल, टेस्ट आप करोगे बच्चों इसको, जो पहले आप अंडरस्टैंड फिर एक्सप्लोर। जो आइडिया और प्रोटोटाइप है वो एक्सप्लोर है, मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोराइजेशन। एंड नेक्स्ट इज टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट। ये मेटलाइज कि आपने जो थिंक किया है, डिजाइन किया, उसको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में आप बना रहे हो, दैट इज टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट। पहले उसको टेस्ट करेंगे, क्या वो टेस्ट है, क्या लोग सेटिस्फाई, हम उनसे फीडबैक लेंगे, यदि फीडबैक सही नहीं है, the people are not satisfied, then again आप define, ideate and prototype बनाओ, टेस्ट। ये जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे कि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट मीन्स स्टार्टअप। ये जो प्रोसेस है वो क्या है, स्टार्टअप। तो ये एक नॉन लीनियर प्रोसेस है, उसमें अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेशन एंड द मेटलाइजेशन, ये सारे प्रोसेस कवर है। तो एम्पैथाइज का क्या मतलब हुआ कि आप जो है वो इंक्वायरी करेंगे, सर्वे करेंगे पीपल्स के साथ, देन उस और प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर आइडिया जनरेट करेंगे, आइडिया मतलब उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, फिर प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। दीज आर द बेसिक स्टार्टअप। यहां से आपका स्टार्टअप की चीज हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि सपोज करो एक इंपॉर्टेंस क्या, मतलब मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूँ कि एक बंगाल के गांव में पानी का बहुत कमी, मतलब कि पानी प्योर वाटर की प्रॉब्लम थी, और मोस्ट ऑफ द वुमेन जो मींस कंटामिनेटेड था, और मोस्ट ऑफ द वुमेन ट्रैवल अराउंड 2 किलोमीटर टू फुलफिल द नीड ऑफ वाटर। But the local government take action and install water tank around the अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक 1/2 किलोमीटर पे उन्होंने वाटर टैंक इंस्टॉल कर दिया, और उसमें जो है उसका जो रेट है वो दैट इज 5 रुपीज पर लीटर कर दिया। इतने पानी जो है वो इतना उसका रेट जो गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर दिया। बट गवर्नमेंट फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर स्टिल नॉट एबल टू यूटिलाइज। जब गवर्नमेंट ने देखा कि स्टिल जो है वो पीपल जो है वो फिर भी यूज नहीं कर पा रहे हैं उस वाटर को, इसका मतलब कि व्हाई गवर्नमेंट फेल टू फुलफिल द नीड ऑफ पीपल, बिकॉज दे डोंट फॉलो द प्रोसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। पहले उन्होंने जो डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस 5-6 स्टेप, पहला स्टेप क्या है, पहले स्टूडेंट्स, पहला स्टेप है एम्पैथी, देन
डिफाइन। तो पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को पहले लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए था, उनका सर्वे करना चाहिए था कि मतलब कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, बच्चे कितने हैं, और ये किड्स कितने हैं, ये सारा, और उनकी इनकम कितनी है, क्या वो बियर, तो पता चला कि जो रोड था 1/2 किलोमीटर का, उसमें बहुत रोड पे चलना मतलब इट्स अ गुड, वो रोड ठीक नहीं था। और जो लेडीज की मीन्स की वुमेन थी, वो मैक्सिमम जो है मेल जो है वो जॉब पे जाते, तो वुमेन के लिए 10 लीटर का टैंक कैरी करना बड़ा मुश्किल था। उसका रेट और कई उसको प्राइस को भी वेयर नहीं कर पा रहे थे, तो काफी सारे इश्यू थे। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने वो जो डिफाइन नहीं किया, मतलब पहले वो सर्वे नहीं किया और फिर प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं किया, तो ये गवर्नमेंट का फेलियर रहा। तो आप यहां से देख सकते हैं कैसे डिजाइन थिंकिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज केस स्टडी 2, ये तो हम एम्पैथाइज और डिफाइन की बात करें। स्नो कवर्ड एरियाज हैं, जैसे आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो वहां पे पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल होती है, तो वहां पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, हम चल नहीं सकते, पानी की बहुत दिक्कत है, इवन हम हॉस्पिटल तक पहुंचना हो बहुत मुश्किल। तो वहां पे न्यू बोर्न बेबी आर ड्यू टू हाइपरथर्मिया एंड नीड अ टाइमली इनक्यूबेटर। बच्चों को क्या चाहिए? जो है इनक्यूबेटर चाहिए, और दूर दूर घर है, वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड सफिशिएंट इनक्यूबेटर। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत मुश्किल था, तो स्टैनफोर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मॉडल ऑफ डिजाइन थिंकिंग, तो उसके क्या किया, फिर उसमें एक सर्वे को कंडक्ट सर्वे एमंग डॉक्टर, नर्सेज, लोकल पीपल थ्रू एम्पैथाइज प्रोसेस एंड देन डिफाइन द प्रॉब्लम। उस और उन प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि कारण क्या है, कि वहां पे जाना बड़ा मुश्किल है, स्नो कवर्ड है, वहां पे इनक्यूबेटर को ले जाना बड़ा मुश्किल है। देन थ्रू आइडिएट प्रोसेस सर्च द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। क्या था नीड? कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, मींस मिनिमम रेट हो, और नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना यूज हो, क्योंकि बहुत मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी की पावर कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू बहुत होती है। पोर्टेबल हो, इजीली ले जा पाए, लाइट वेट हो, इजी टू हैंडल हो, वहां की लेडीज उनको हैंडल कर पाए। तो ये आइडिया से हम ये प्रोटोटाइप फिर हम बनाएंगे। जब ये आइडिया का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर हम उसको क्या करेंगे? प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे, फिर देन इंप्लीमेंट करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस के बाद देन स्टार्टअप की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टअप क्या है। A new company providing the potential for high growth means the process from idea to venture. It is the evidence-based entrepreneurship. Idea है, prototype, then product, business and the venture. Final आपकी जो कंपनी है, अंडरस्टैंड? तो आपके पास आइडिया हो, वैल्यू प्राइस फिट हो, मीन्स कि ऐसा ना हो कि फोन जो है वो आप जो है वो फोन बना दिया आपने 1 लाख का, और आप जो है वो पर्सनल जो लोग हैं जो वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम लोग, तो दैट इज नॉट अ वैल्यू प्राइस फिट। देन प्रोडक्ट फैक्ट्री फिट, यदि आपने प्रोडक्ट बना दिया है फैक्ट्री में, आप उसको मास प्रोडक्शन नहीं करा पा रहे हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है क्या वो मार्केट में सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कॉम्पिटिटर के साथ आपका है। तो ये है प्रोडक्ट मार्केट फिट। एंड देन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड फिट, कि आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको उसका रिवार्ड मिल रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो ये स्टेप आपको जब भी आप कोई प्लान करें स्टार्ट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देन मार्केट फिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट नीड, produce must fit to its value for the user, customer feedback is very important, continued innovation। अब मैं छोटा सा एग्जांपल, continued means innovation का मतलब है कि नोकिया ने क्या किया कि उसने कंटिन्यूअस इनोवेशन नहीं की और वो सोल्ड आउट हो गई कंपनी, मींस या लेट कर दी, टाइमिंग, अंडरस्टैंड?
एंड अदर थिंग, टाइमिंग ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी राइट, टाइमिंग सही होनी चाहिए। यदि आपने कोविड में देखा होगा कि मास्क बनाने वाले कई लोग जो मास्क उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, राइट टाइम था वो, जिन्होंने वो स्टार्ट किया वो आप बहुत आगे हैं। दैट इज द टाइमिंग ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी राइट। और ब्रांड में मतलब टैग, उसका टैग भी सही, जैसे कि नैनो कार 1 लाख के साथ कुछ मत मीन्स उसके यूनिट बिके, उसके बाद वो 1 लाख नहीं तो वो 3-4 लाख तक, 2.5 लाख तक पहुंच गए, पर उसका टैग क्या था, 1 लाख की कार। यदि उसका नाम जो है वो बदल के ऐसे क्या कर देते कि क्यूट कार है, ऐसा करके देते तो लोग उसको, अब लोग पैसा भी दे रहे हैं 3 लाख और सब बोलेंगे टैग क्या लग गया कि 1 लाख, 1 लाख की कार इसके पास है। तो ये भी बहुत, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कस्टमर फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए, कंटिन्यू इनोवेशन करते रहिए, टाइम टू टाइम उसको इनोवेशन से अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करिए और मार्केट नीड के अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करिए। नाउ व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी फॉर द पिज्जा बिजनेस? क्या है अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ क्या है कि वो एक तो पिज्जा अराइव लेट, ठंडा हो जाता है, फोन टेक्स फॉरएवर टू आंसर, आप बहुत बार फोन कर रहे हो, ऑर्डर जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, टेस्ट, पैकेजिंग के बाद टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, चैलेंजेस क्या क्या है, लोकेशन इज बैड, रेंट काफी हाई है, बैड मैनेजमेंट है, ये दीज आर द प्रॉब्लम एंड द चैलेंजिंग। और जो बच्चे इन प्रॉब्लम और चैलेंजेस को अंडरस्टैंड कर गए, वो उनको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के। तो एक कॉमन प्रॉब्लम आप जो है वो जो देखते हैं, पिज्जा सब बच्चे बहुत बहुत एंजॉय करते हैं, तो ये प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम के लेके आप अपना कुछ आइडिया उसमें डाल सकते हैं, आपके कुछ एक्सपीरियंस है, इन सब आइडिया को ये डिजाइन कर सकते हैं, इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या चैलेंजिंग है। नाउ स्टार्टअप मैनेजमेंट, अब आपने स्टार्टअप बना दिया, बहुत अच्छा आपने प्रोडक्ट बना दिया कि आपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर दिया, फीडबैक लेके कस्टमर ओरिएंटेड बना दिया, और पर उसकी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्टअप मैनेजमेंट। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपने प्रोटोटाइप तो बना दिया 2-3 पीपल्स के लिए, बट उसका प्रोडक्शन उतना कर पा रहे हैं मास के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टोर मैनेजमेंट, फिजिकल एंड ऑनलाइन। फिजिकल मतलब कि लेआउट आपने रखा है कि कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, एंड ऑनलाइन स्टोर कि उसका डिस्प्ले क्या कर रहे हो आप, मतलब कि आपके पास बहुत सारे चीजें कि आप क्या वो आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अमेजोन में आपका मीन्स की फ्लिपकार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और देन लॉजिस्टिक्स, एंड देन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। यदि आप उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे और सोशल के साथ अटैचमेंट नहीं है आपकी, तो वो आपका स्टार्टअप चलेगा नहीं। देन ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक मैनेजमेंट, मींस कि स्टॉक की आपके पास स्टॉक है कि आपके पास इतना प्रॉपर कि आपने बहुत ज्यादा स्टॉक ले लिया, वो बिका ही नहीं सामान, आपका प्रोडक्ट नहीं बिका, या क्या आपने वो वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टॉक में ले आए जो कम बिक रहा है, जिसकी डिमांड कम है। तो आपको ये चीजें मैनेज करनी है। और कस्टमर सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, क्या कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है टाइम टू टाइम, दैट इज द इंपॉर्टेंट। नाउ स्किल्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल रिक्वायर्ड। आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपकी टेक्निकल स्किल यहाँ पे काम आ गई, आपने टेक्निकल स्किल बहुत ज्यादा अच्छे हो, पर जब तक आपकी ये जो स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, एक बार आपने प्रोडक्ट बना लिया, आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए। जब आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए, उसके बाद का काम क्या है, टेक्निकल स्किल तो आ गया आपके, पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन स्किल। यदि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट को आगे नहीं सेल कर पाओगे। सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल, आपको सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने आना चाहिए। अब कोई इंजीनियर है, अपने जो क्लीग के साथ अच्छे से डील नहीं कर पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या मतलब हो, फिर वो प्रोडक्ट आपका सेल नहीं होगा। ऑब्जर्विंग एंड क्वेश्चनिंग स्किल, आपको ऑब्जर्विंग, आपकी क्वेश्चनिंग स्किल भी होनी चाहिए। क्वेश्चनिंग मतलब यस नो नहीं, आपको कस्टमर से पूछना है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, इसकी क्या क्या, यस और नो नहीं कि अच्छा है यस नो ऐसा नहीं, उनसे अच्छे तरह से क्वेश्चनिंग करनी है। ये क्वेश्चन
स्किल है। देन फाइनेंशियल स्किल्स, आपके पास फाइनेंस है, आपको किस तरह से उसको आप मैनेज करके चल रहे हो। टेक्निकल स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये आप जानते हैं सब बच्चे, डिजिटल मार्केटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस एंड ऑप्टिमिज्म। जब तक आप में पेशेंस नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। जब तक पेशेंस, मतलब कि लड़ने के लिए आपको पेशेंस, कि आपको पास आपका प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, फिर भी आप लगे हो कि नहीं, मुझे अपने प्रोडक्ट को और इंप्रूव करना है मुझे। तो पेशेंस एंड ऑप्टिमिज्म, ये ऑप्टिक मतलब कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पेशेंस। तो दीज आर द बेसिक स्किल रिक्वायर्ड। नाउ हाउ टू ग्रो योर स्टार्टअप। नाउ दीज आर 4, मैं ये 4 पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँ आप अपने स्टार्टअप को कैसे ग्रो कर सकते हो। फर्स्ट इज ओपन। फर्स्ट वन मीन्स ये आपके पास बाय एक्सिस में आपके पास नोन टू यू, अननोन टू यू, और एक्स एक्सिस में क्या है, अननोन टू अदर्स एंड नोन टू अदर्स। ये अपने लिए है बच्चों, एक्स एक्सिस में, बाय एक्सिस अदर्स के लिए। तो फर्स्ट जो केस है, नोन टू यू एंड नोन टू अदर, मतलब आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, आपको पता है और लोगों को भी पता है, मतलब आपने उनके प्रॉब्लम को समझ लिया है। दैट इज अ ओपन। सेकंड केस, ब्लाइंड। नोन टू अदर्स, मतलब औरों को तो पता है पर आपको नहीं पता, अननोन टू यू, आपको उस प्रॉब्लम के बारे में, उसका सोल्यूशन के बारे में पता नहीं है। थर्ड इज हिडन। नोन टू यू बट नॉट नोन टू अदर्स, मतलब आपको पता है पर लोगों को पता नहीं। आपने अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाए, आपने अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया पर आपकी मार्केटिंग नहीं कर पाया, तो वो हिडन रह गया। फोर्थ इज अननोन। किसी को ना आपको उसके बारे में पता है, ना कस्टमर को पता। तो ये अननोन वाले में स्कोप बहुत ज्यादा है। एंड इसके लिए आपका टेक्निकल स्किल, आपकी नॉलेज को फिर से करिए बच्चों, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, फिर से करिए और एक अच्छा स्टार्टअप प्रोड्यूस करिए। सो अब हमारा मेन एम है ओपन। ये ओपन वाले एरिया को इंक्रीज करना है। अंडरस्टैंड कैसे इंक्रीज करेंगे? ओपन वाले में ब्लाइंड, मतलब अननोन टू यू, नोन टू अदर्स, इसके लिए आपको फीडबैक लेना है। इस वाले एरिया को फीडबैक देना है। फीडबैक लेके आप ओपन से, जो ब्लाइंड वाला जो ना ग्रीन वाला, ये फीडबैक के थ्रू आप इसको कम कर सकते हैं। और यहाँ पे जब ओपन से जो हिडन है वाला एरिया, इसमें आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, मतलब कि अननोन टू अदर्स बट नोन टू यू, मतलब कि आपने लोगों को क्या किया कि बताया नहीं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। तो ये जो हिडन वाला एरिया है, इसको आप कम कर सकते हैं थ्रू द मार्केटिंग, थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन वाला ओपन वाला काम है, यू नो व्हाट अदर्स नीड, अदर्स नो व्हाट यू डू। दिस इज द वैल्यू प्रोपोजिशन। ये क्या है? वैल्यू प्रोपोजिशन। यही है, यही आप लोगों का अल्टीमेट एम है कि यू नो व्हाट, आपको क्या पता है कि औरों की क्या जरूरत है, नीड है, उनको क्या चाहिए। अदर्स नो व्हाट यू डू, और उनको ये पता कि इनकी कैपेबिलिटी कितनी है। जब ये हो गई बच्चों, तो वैल्यू प्रोपोजिशन, आपको कोई रोक नहीं सकता आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनाने, मतलब एंटरप्रेन्योर जो कि एक सक्सेसफुल होने के लिए। तो सबसे बड़ी बात मैंने एक आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पेशेंस है, अपनी स्किल्स को टाइम टू टाइम डेवलप करना है, और बीटेक और इंजीनियरिंग में बहुत आपको टाइम मिलेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको ये सब चीजें जो है वो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए सोचना, ताकि आप अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ, जिससे कि आपकी भी डेवलपमेंट हो, फैमिली की भी डेवलपमेंट हो, सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो, और आपका देश जो है वो आगे बढ़े। तो दीज आर द बेसिक थिंग। तो बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ऑफ लर्निंग, आज का जो पूरा टॉक है उसका मेन क्या? गेन कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोजर टुवर्ड द स्कोप ऑफ डिजाइनिंग द प्रोटोटाइप through critical thinking and innovation. Skill set required to grow startup activity and learn how
simple idea with innovation and startup management skills leads to the prototype and final product. Students learn about the achievement of value proposition fit and business fit through the critical thinking, innovation and development of customer centric prototype और final product. तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो नहीं है, जो अपने फ्रेंड हैं जो कहीं और हैं या आप गांव में हैं, मेरे भाई बहन, उनको ये सब चीजें आप जाके बताओ, और क्योंकि आइडियाज बहुत हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है थ्रू द वेरियस स्टेप ऑफ डिजाइन थिंकिंग. तो डिजाइन थिंकिंग के थ्रू पॉजिटिव से आपको जो है एक प्रोडक्ट, एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनाना है, आपको लोगों को जॉब देनी है. अभी एक टास्क है, मैंने एक गूगल फॉर्म बच्चों आप बनाया है, मैं शेयर कर दूंगा चैट बॉक्स में. इस गूगल फॉर्म को भरना, उसमें टास्क क्या है, जो मेन जो क्वेश्चन है कि राइट द स्टार्टअप आइडिया यू हैव इन योर माइंड बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर. मतलब आपको एक आइडिया, मतलब 300 वर्ड्स का है, 200 वर्ड्स का आइडिया है, और उसमें आप किस तरह से आप एक गुड एंटरप्रेन्योर बनाने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, आपके पास सोल्यूशन क्या है, ये सब कुछ आपको लिखना है. अंडरस्टैंड, ये नहीं कि बहुत बड़ा आइडिया है, आप स्मॉल सा भी आइडिया आपका होगा वो भी यूजफुल हो सकता है. तो ये फॉर्म मैं आपको भेज दूंगा, आप बच्चे इसको फिल करना. एंड देन थैंक यू एंड बेस्ट विश स्टूडेंट्स. और मेरा यूट्यूब चैनल नेम पठानिया फिजिक्स लेक्चर्स है. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ गुड वीडियोज टू ऑल ऑफ यू पीपल. उसमें प्रैक्टिकल हैं और प्लेलिस्ट जो भी टॉपिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स के वो मैंने कवर किए हैं. इट इज द काइंड ऑफ स्टार्टअप आई हैव स्टार्टेड दैट जब मैं गांव में था और वहां पे मतलब कोविड के दौरान बड़ा मुश्किल, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो बच्चों की हेल्प हो पाए. ठीक है. थैंक यू डॉक्टर पठानिया. थैंक यू सर. एंड एनी थैंक यू वेरी मच. क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं यहीं पे स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर हूं और ये जो इनक्यूबेशन सेल है अंडर उसका कोऑर्डिनेटर हूं. आप बच्चों के पास कोई आइडियाज हो, एनी टाइम आइए. यहाँ पे बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं, मैक्सिमम अच्छी जगह से. आप उनसे कोई आइडिया है तो आप शेयर कर सकते हैं. यहाँ आपको शाई नहीं होना कि मेरा जो आइडिया उस पर कोई हंसेगा, क्या करेगा, ये चीजें नहीं करनी. आपको आना है और डिस्कस करना है. अंडरस्टैंड. आइडिया ये नहीं कि आप मिसाइल बना दोगे, छोटी सी भी आपके पास आइडिया होगा वो हम उसको आगे मतलब फाइनेंस जो भी मतलब फाइनेंस जो एजेंसीज है जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है. आपके पास आइडिया की जरूरत है बच्चों बस. जी. तो थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा बच्चों के लिए. बहुत ही प्राइमरी स्टेज में जो इन्फॉर्मेशन दिया डॉक्टर पंकज ने, बहुत ही अच्छा. स्टूडेंट लेवल पर ये हमेशा होना चाहिए कि जो आइडिया हो उसको, अभी जो भी इनोवेशन हुए हैं फर्स्ट टाइम लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा आइडिया है, लेकिन बाद में लगता है कि ये बहुत ही यूनिक लोगों ने इनोवेट किया और उसको पेटेंटेबल भी किया. तो आगे ये जर्नी हमारी स्टार्ट रहेगी और फर्दर हम लोग मीट भी करेंगे. जिनके आइडियाज़ होंगे उनको इनवाइट करेंगे और एक ऐसे वर्क कल्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए. एक फीडबैक आपको दिया गया है, उस लिंक को सभी स्टूडेंट उसको ओपन कर लें और वो फीडबैक फॉर्म फिल कर दें, तो जिससे आपका सारा व्यूज़ और डिटेल्स हम लोग को मिलेगा. और कभी भी कोई भी स्टूडेंट इनोवेशन सेल या डॉक्टर पंकज से मिलना चाहें तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं. थैंक यू ऑल. चैट बॉक्स में मैं शेयर कर देता हूं उसको. हाँ, जो ये है सर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है फीडबैक का और ऑलरेडी इनके उस पे है. टास्क है सर, बेसिकली बच्चों को टास्क है, बच्चे इसमें जो है वो अपना कुछ पॉजिटिव देंगे. यस. तो यूजफुल है. चैट बॉक्स में मैं इसको शेयर कर 4 मिनट में ये हमारा क्लोज हो जाएगा क्योंकि 2:30 तक का टाइम है. तो जो भी लिंक क्लास कोऑर्डिनेटर से लिंक में शेयर कर रहा हूँ टास्क के लिए स्टूडेंट्स के एरिना में सेकंड और थर्ड फ्लोर पर, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल वाले बच्चे इंटरेक्ट करेंगे डीगमॉग एरिना में.
ओके ओके। तो नाउ स्टूडेंट अभी जो भी क्लास में बैठे हैं वो सभी लोग क्लास कोऑर्डिनेटर से परमिशन लेकर के जो स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट आ रहे हैं वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो डी ब्लॉक एरिया में ही आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे। शांतनु पांडे आप डिस्कस सेकेंड और थर्ड फ्लोर, कर सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर कॉरिडोर में, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर के कॉरिडोर में खड़े होंगे, वहीं पर इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट काउंसिल के ग्राउंड। शांतनु और ग्राउंड फ्लोर में आप मेरे परफॉर्मेंस से बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए प्लानिंग क्या की गई है कि ग्राउंड फ्लोर पर परफॉर्मेंस होगा, सेकंड और थर्ड फ्लोर पर कॉरिडोर में बच्चे खड़े होकर के व्यू मतलब वो देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से परमिशन लेकर के आप क्लास के बाहर सेकंड फ्लोर के स्टूडेंट सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर के स्टूडेंट थर्ड फ्लोर पर रहेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर जो प्रोग्राम होगा वो यहीं से आप खड़े होकर के देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो मेरे से आके पूछ सकता है।